मन्मनाभा मन्मनाभा मन्मनाभा। Om Shanti. There is a few hundred years of yoga power sitting in front of you. Did you sense that? Did you feel the yoga power? So of course we welcome Dadiji and Mohini Ben, but I would also like to give a special welcome to Asha Ben, Sharda Ben, Vedanti Ben, whom we're seeing for the first time, and Sudesh Didi also. Would you like to come, Sudesh Didi, on the stage and just come in front of us? She took a beautiful class on silence. It really took us into that stage of how to be silence rather than just think about it. And in fact, I would like you to stand up and greet them in a very special way. If you'd like to stand up and greet them with the namaste that we normally do, but just hold your hands in front of you like we normally say namaste, and just a little bow. Thank you for being with us, and a special drishti from everyone. Thank you. मैं समझती हूँ 1 घंटा बैठे थे हमारे पास वहाँ, तो मैंने कहा सभा में हाजिर हो जाएंगे ना, ठीक है ना? अच्छा, खुशी की बात है ना। बड़े अच्छे आराम से बैठे थे, बहुत लोग आए थे मिलने के लिए। मैंने देखा इतना प्यारा से हैं, तो यहाँ सभा में मैं 2 मिनट थोड़ा शब्द भी। हाँ। ओम शांति। बोलो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। परमा आदरणीय दादी जी and all my Dadi and Didi and all my brother. Really, I came from West Indies here. एक बहुत बड़ा अनुभव, ये मैं तीसरी बार आया हूँ यहाँ पर। This is the 3rd time I came here. Every time enjoy, happiness, blissfulness. I realize here. So, my dear brother and sister and Dadiji, this time I came with the one purpose. Purpose was, is 4 years before I was here, and Dadi
guided, inspired to write down the commentary, traditional commentary on the Gita. So 1 year I was confused. What should do, how should do, how much I will do, no experience. But day by day, then I started to read and realize and think and read so many books, so many commentary of Shankaracharya, Ramanujacharya, Vallabhacharya, all Vedanta and Advaita and Dvaita. I realized no. Dadi told Param Pita Shiv Paramatma. I am a student of the Vedas. In Vedas, everywhere the Shiv, 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 Shankar, Shambhu, Mahesh, 1001 name there. But everywhere is the Shiv. We are reciting Om Namah Shivaya. My birthplace in Kashi, Kashi Vishwanath place. So I realized, no, Dadi told, you right. I born in the lap of Lord Shiva Kashi, then started to think. All the knowledge, wisdom in the heart, in the bottom of the heart. When we start to think, so new things is coming. One thing, Yajurveda mantras. Taname manah siva sankalpamastu. Taname, mane your. Mana, mind. What is a mind? That is other big philosophy in our Vedic tradition. Taname mana Shiv. Who is Shiv? Shiv means dharma, righteousness. Shiv means Atma, soul. Shiv means Paramatma, supreme being, absolute power. So, many meanings in the Shiva. Then I started to search what is the guidance of our Prajapati Brahma. My dear friend and Brijamohan ji and हमारी दीदी और दादी 2 hours, 1 hour we are discussing. Usha Didi, discussing what is your opinion, not opinion, what is your philosophy, not only philosophy, what is your realization and intuition about this Shiva. And then one day 2 hours with so hot discussion on the phone with the other big leader of this country. How peacefully he is solving. First time I realized, Om Shanti. What is Om? And what is Shanti? How Shanti will come in the life and peace. So my dear friend and my all sisters, here I learned the meaning of Om Shanti. Other time will take a time to maybe I can explain. Very Om Shanti. Om is a root. Shanti is a fruit. This fruit and root together, that is a life. Om Shanti. Then Sankalpa Mastu. Sankalpa, desire, opinion, thoughts, thinking. Thoughts become ism. That is not ism.
That is the flow water. So sankalpamastu. Think how the Shiva will come in the life. How the Shiva will come in the mind. How in the mind Shiva will come. This place is the best place to understand the meaning of the Vedas. I'm listening the Murali, morning Murali. My dear friend, I read so many pages, so many paper through the and West Indies, Trinidad, my didis, like my mother, Hemlata ji. He's given all paper. All paper of Murali is the essence of the Vedas and Puranas and Ramayana, Srimad Bhagavad Puranam, Srimad Bhagavad Gita. It is my desire how to select the gems, diamond from the Murali. And I started to read that. I was thinking, a simple thing, simple language, that is not so deep. I felt that is deep. Now I came to take blessing, all my dadi and didi and all my brother, please pray for me, bless me. I can complete the desire of the dadi to give a complete commentary on the Gita in the light of, in the guidance of my Shiv Baba, Parampita, and then Prajapati Baba. So I am doing pranam. I will not take a time. Just I presented my heart with give me blessing. Hari Om, Tassat, Om Shanti. ओके हमारे मोहनी बहन अमेरिका से आई है दो शब्द स्वामी जी को ये संकल्प दिया गया था कि आप ये सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है। और मैं कुछ सालों से देख रही हूँ कि ये प्रयास कर रहे हैं और इस बार इनको ऐसा लग रहा है कि और ये बात स्पष्ट होती जा रही है। बाबा ये कहते हैं कि अगर परमात्मा का सही परिचय सबको मिले और सबका मन और बुद्धि एक परमात्मा से लग जाए तो उनके जीवन में लाइट, माइंड, शांति, सुख जो अनुभूति उनको होगी, जो वर्षे की प्राप्ति होगी, तो उनका जीवन सदा सुखी हो जाएगा। क्योंकि आज का मानव हर बात में चिंता भी है तो दुख भी है, परेशानी भी है, कुछ भविष्य की, कुछ वर्तमान की। लेकिन जब बाबा का परिचय मिलेगा और जब वो फिर गीता पढ़ें तो उनको पता लगेगा कि ये महावाक्य किसके उच्चारण किए हुए हैं, तो ज़रूर है कि उनको सर्व प्राप्तियाँ होंगी। बाबा कहते हैं कि अगर ये बात सिद्ध हो जाए तो इतने गीता पढ़ने वाले हैं। आजकल तो आप में से कुछ देखते होंगे कि भक्ति मार्ग का बहुत विस्तार है और भक्ति मार्ग भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री कहो, बहुत बड़े बड़े सत्संग। और सबसे बड़ी बात छोटी आयु वाले 11 साल, 16 साल, 21 साल, 22 साल, उनकी जो गैदरिंग है वो 50,000 की, 60,000 की। बड़ी बड़ी आयु वाले तो साधु संत महात्माएं, पर जो छोटी आयु वाले गीता पर, भागवत पर बोलते हैं और भजन गाते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं। तो बाबा भी कहता है ना कि बच्चे वो लोग संस्कार लेके आते हैं। तो भक्ति का बहुत विस्तार है। तो भक्ति के विस्तार के बाद क्या होगा? बाबा कहता है ना, भक्ति, वैराग्य, फिर ज्ञान। तो ये तैयारी हो रही है जैसे कि सबको बाबा का परिचय मिले। तो स्वामी जी ने ये संकल्प रखा है, हम सब की ये शुभ आशा है कि आपका ये संकल्प पूरा होगा और आपका ये प्रयास ज़रूर सफल होगा। ओम शांति। मैं 3 बारी ओम शांति कहेंगे। ओम
शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, 3 बार ओम शांति क्यों कहती हूँ आप समझते हो? सारे दिन में मुख से भले न बोले, पर ओम शांति शब्द जो है ना बड़ा मीठा है। परमपिता परमात्मा बाप मैं तो देखती हूँ वंडरफुल है। मैं हूँ आत्मा, परमात्मा है मेरा बाप, और ये 5 अंगुली हमारा बहुत तरह के फोटो में ये 5 अंगुली बराबर नहीं है, ये छोटी है या मोटी है, परंतु दिन रात मैं कौन मेरा कौन, मैं हूँ आत्मा शरीर में। तो मैं बाबा से पूछती हूँ, बाबा इस आत्मा को अभी तक शरीर में क्यों रखा है, बताए। बाबा क्या जवाब देगा? बाबा ने इस आत्मा को शरीर में आज दिन तक क्यों रखा है? हमारे पूर्वज ये यहाँ भी है, यहाँ भी फोटो लगा। क्यों? बाबा कहता है मेरी भावना भी है, बाबा कौन है, कैसा है, वो जिन्होंने जाना पहचाना मेरा बाप कौन, जो सारे विश्व का आज मैं कल मोहनी बहन से मिली थी, बहुत समय लास्ट ईयर भी नहीं मिली थी, तो बड़ी खुशी हुई। बाबा ने हम बच्चों को अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। कोई बात कभी मुश्किल नहीं है। क्यों? मुश्किल क्या है? हमको नेचुरल अटेंशन रखना ज़रूरी है, पर टेंशन से फ्री है, समझा? टेंशन से फ्री है, अटेंशन रखना ज़रूरी है। क्यों? अभी पहले जब 11 में आई बाबा से, तो मुझे जहाँ मेरा तन है वहाँ मेरा मन है। जहाँ भी हूँ, मन कहाँ जाएगा? मन बाबा को देख। मन बुद्धि संस्कार आत्मा में 3 चीजें है। मन बुद्धि संस्कार, मन शांत और बुद्धि स्थिर है, अडोल चल रहा है। पांच अंगुली को बताया। एक बाबा
दूसरी संकल्प में सच्चाई और दृढ़ता की मदद बहुत मिली। ये जब टीका लगाते हैं ना तो ये अंगुली, ये निरंकारी बनाती है, अहंकार का अंत न हो। ये एक बाबा मेरे साथ है और संकल्प में बड़ी अच्छा लगता है, शांत से अडोल चल। अंतर्मुखता से मन शांत है। मेरे भाई, मैंने कहा सभी स्वामी जी कहते हैं, मैं तो भाई कहते हूँ। भाई साहब विद्यमान भाई बैठा था ना, हाँ, क्यों बाबा के बच्चे हैं ना, बाप एक, हम उसके बच्चे, क्या करते हैं, क्या करना है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो रहा है। चिंता करना हमारा धर्म नहीं है। कर्म कैसा भी हो अच्छा करना है। कर्म भले बलवान है, ऐसा बलवान है अभी जो पास्ट के कोई भी भूल हुई होंगी वो परमात्मा बाप माफ कर देता है, किया है। समय थोड़ा है, इसी समय में मैं भगवान वाच बच्चे मन मना भव, फिर मध्याजी भव, लक्ष्य होना है। मन परमात्मा में लगाया, लक्ष्य क्या है? जब सत्युग था, अब सत्युग आने वाला है। कलयुग जा रहा बेचारा, हमको क्या करने का है? परमात्मा बाप ने बुद्धि में क्या कैसे चला रहा है? खुश राजी, खुश और राजी रहना, कभी भी नाराज न होना। ये है समझदार बच्चों का काम। ओके ओके, जो 5 बातें 3 वाली ओम शांति कहती हो, परंतु निज गुण 5 लाइफ में होने चाहिए। कौन से 5 गुण? पवित्रता पहले है। पवित्रता तभी चालू रह सकती है जब सत्यता है। सत्यता और पवित्रता जीवन यात्रा में सदाई होवे। उसमें धीरता चाहिए। क्यों धीरता? पवित्रता को, सत्यता को अच्छा
मजबूत बना देता है। और साथ साथ देखा गया है निम्रता ज़रूरी है। थोड़ी भी अभिमान है तो अभिमान बड़ा क्या है, दुश्मन है हमारा। इसलिए पवित्रता, सत्यता, धीरता, फिर निम्रता और मधुरता, 5 बातें नेचुरल लाइफ में है। तो प्यारा बाबा बोलेंगे सब, प्यारा बाबा बोलो, प्यारा बाबा दिल से कहते हैं ना।